नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव सीपीवी और ओईए यानी कि अरुण कुमार चटर्जी और सरकारी प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की और इस मौके पर अरुण कुमार चटर्जी और रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Most of our embassies go and see the labor camps, the places that our workers are staying, to ensure and see that the places are fit for their staying. And that is an exercise which is an ongoing exercise which regularly we keep on doing. The Mangaf incident was an unfortunate thing that happened that early morning on 12th of June, for which we lost a large number of Indian nationals in that event. We have taken, the Honorable Prime Minister himself chaired a review meeting that day itself, and our MOS, Sri Kirtivardan Singh ji, had personally gone, supervised the movement of the mortal remains of all those who had unfortunately passed away in that particular incident. Several compensations have been announced, not only by the government of Kuwait, but by the government of India and the employer also. I am not going into all the details. Those are here with me. In case anybody is interested after this, we would be very happy to share that. First, coming to your question, Shreesh. See, the SR level talks happened on 18th. After that, we put out our press release. Our press release gives you a perspective as to what was discussed. Now, the specific question about the 6-point consensus, I think we can speak for our press release and give you details on that. I can say that, what we have said in our press release, that we have reaffirmed their commitment, both sides have reaffirmed their commitment to explore a fair, reasonable and mutually acceptable framework for the settlement of the boundary question in accordance with the political parameters and guiding principles agreed in 2005. There were some questions about this 2005 also. It's a document which is available, publicly available. It is there on our website, so I would encourage you to have a look at that. But please, I would urge that please refer to our press release. That gives you the details of the discussion that happened. As also, coming to your question, the 6-point consensus. The 6-point consensus is detailed in the press release that you referred. See, as you know that we follow all developments which have a bearing on our security and our interest very closely, and we take these things very seriously and take action as appropriate. On the question of the statement that you referred to made by a Bangladeshi senior leader, we have taken this up with the Bangladeshi government. We have actually strongly registered a protest on this issue. We understand that the post that you referred has been taken down. We would like to remind all concerned to be mindful of their public comments. While India has repeatedly signaled interest in fostering relations with the people and the interim government of Bangladesh, such comments underline the need for responsibility in public articulation. That we have strongly protested against this with the Bangladesh government. Yes, as and when such threats are issued, we take them very seriously and we raise it with the US government. In this particular case also, we've raised it with the US government, and it is our expectation that the United States government will take our security concerns seriously. These Indian workers, they had reached Benghazi via Dubai. They had gone there but did not have proper documents. When they landed there were some issues regarding their work. When we came to know of these difficulties, we already, as you know, we have now our embassy in Tripoli is active. We reached out to the workers, we reached out through our the community members there,
and we have given them a helping hand. We have arranged for their food, for their daily living articles. Our CDA in Tripoli has also met these workers. This happened on, I think, on 4th of November. Since these people had gone to Libya without proper documentation, so to exit the country now, they need an exit permit as per the guidelines of Libya. The embassy is in touch with Libyan authorities to arrange for their exit permit. The exit permit is taking little time because they had gone there without proper documentation. But once this exit permit is done, all these people who have having difficulties, our embassy will facilitate the return home. As of now, our embassy is in touch with them, their employers, and taking care of them, and we are closely following the situation and the development. Yes, our foreign secretary participated in those talks in Thailand. The talks were on the land boundary neighbors of Myanmar. That these talks happened on 19th of December. Where we explained our position. You are aware of our position on Myanmar. We have called for cessation of all violence. We've called for peace and stability and resolution of the ethnic issue through the establishment of a genuine federal democracy. We also believe that this process of return of stability should be Myanmar-led and Myanmar-owned, and should take into account the views of all stakeholders to ensure that peace and stability return to Myanmar early. Also, I would like to add the land boundary neighbors of Myanmar also have a particular set of concerns. We have seen reports about foreign interference in India, including in the international media. You are also aware that this was discussed in both houses of parliament, so that is the point. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए भूमि क्रय किए जाने के मामले में अन्नदाता किसान बंधुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जेवर कार्यक्रम प्रारंभ होने के समय ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया समय ही और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अच्छा लगा कि आप लोग, और मुझे सबसे पहली बात तो अच्छा लगा कि आप लोग मिलने का अवसर, आप लोगों से मुझे यहाँ पे मिलने का अवसर प्राप्त। यद्यपि मुझे ही वहां आना चाहिए था, लेकिन रहना चाहिए बुलाते नहीं मुझे, रहना चाहिए बुलाते नहीं मुझे। चुनाव में भी जब मैं जाता हूं तो कहते हैं यार चुनाव में भी, वो तो उस समय आप लोग जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। इनका फल आप पे विश्वास है और मजबूती के साथ वहां आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा, देखिए जुलाई 17 की वो घटना जहां पर एक परिवार के साथ जो दरिंदगी कार्यक्रम जेवर क्षेत्र में हुआ था, और मैं उस समय प्रदेश के अंदर अलग क्षेत्र में दौरे पे था, तो मैंने विधायक जी को फोन करके पूछा था। मैंने हालचाल लिया, इन्होंने कहा कि यहां घटना घटित हुई है, घटना बहुत ही खराब है और इसमें अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। फिर मैंने वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और फिर मुझे बताया गया कि साहब 20 वर्ष से, पिछले 40 वर्ष से वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि विकास के कार्य बड़े होंगे तो प्राइवेट प्लेयर खराब वे साइड हो जाएंगे, लाइसेंसर दलाल किस्म के लोग बाहर हो जाएंगे और फिर एक लंबे समय तक समाज को भी, देश को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने इन लोगों से
माननीय विधायकों से, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके तय किया कि नहीं, ये काम होना है और इस कार्य को हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं उस समय, देखो 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव। लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने, ये हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यहीं बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहां पास करवाया, पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5-5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और केवल रनवे ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ रहे, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से या उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, पिछली सरकारों ने गलत किया था, उसका खामियाजा इस सबको भुगतना पड़ा। प्रदेश को भी भुगतना पड़ा, किसान भी भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं। हमने सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी समस्याएं इतनी खराब स्तर पर पहुंची हुई हैं, न्यायालय में लंबित हैं, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे सरकार का कोई नियंत्रण रहता नहीं है। इसलिए न्यायालय में लंबित मामले में सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो अथॉरिटी में या सरकार के पास लंबित है, उन सब का समाधान करवाया गया। और आज अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश की तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहां, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और ये सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए जब मैं अथॉरिटी के सीईओ को यहां पे बुलाया
और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने कहा। और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए और कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने उनको यहां पर अभी बोला कि भाई क्या आप दे सकते हैं इन किसानों को। मैं देख रहा था यहां से हमने पहले फेज में वहां पर जो है 1334 हेक्टेयर भूमि दी, उसका मुआवजा दे दिया गया। ये जो पड़ा था उस समय हमें 2300 रुपया प्रति वर्ग मीटर पड़ा था। द्वितीय चरण में हमने 1365 हेक्टेयर भूमि ली। यह लैंड हम लोगों को वहां पे पड़ी, यानी एयरपोर्ट को बनाने के लिए मिली 3100 प्रति वर्ग मीटर, ये दिया गया और उसका कंपनसेशन भी वे वितरित कर चुके हैं। अब तीसरे चरण का जो अंतिम फेज का ये चल रहा है, इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे फिर तैयार होने हैं और 5 रनवे बनने हैं जो देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इसके लिए यहां पे जो रेट यहां पे तय किया गया है कि प्रति वर्ग मीटर, और अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है। इन्होंने लिखा है कि साहब इसमें इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है। उसके आगे इनकी कलम रोक जा रही है। मैंने कहा रोको मत भी, एक धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। और इसीलिए अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा तक तय है 4100 रुपया, 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। तो देखो 2300 से हम बढ़ करके 4100 तक पहुंच चुके हैं। ये है विकास। बाबा बाबा आपकी तरफ देखिए 4100 वहां पर अभी मैंने कहा विधायक जी इसको और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो विधायक जी का तो मैं वैसे भी उनके लिए योगासन करने के लिए योग गुरु मैंने भी उनको दे दिया। ऐसा ये योग करते होंगे क्या? लेकिन इसको आप बढ़ा करके करिए। वास्तव में वह 4100 अच्छा रेट है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी सारी की सारी लैंड जाएगी, घर भी जाएगा, उस अलग से भी कंपनसेशन को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। वो बढ़कर के 4100 का जो रेट हम कह रहे हैं वो बढ़कर के 4300 तक 4600 तक जाएगा। मेरा मानना है जो मूल रेट है हाँ 12.5% उसमें अतिरिक्त तो उसमें भी मिलेगा। तो जो मूल रेट है
उस मूल रेट को 4100 से बढ़ा करके आप 4300 कर दीजिए। आपका ये बढ़कर के मुझे लगता है कि लगभग 5,000 तक पहुंच जाएगा 5,000। ठीक है, अब भारत जोड़ करो, भारत माता की जय। अब मेरा आप सबसे अपील होगा कि एक समय सीमा पर इस कार्य को करते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप सभी अन्नदाता किसानों के बारे में जो चीजें मैंने यहां पर कही है, माननीय विधायक जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक तो कंपनसेशन सभी समय पे सबको मिल जाए, अन्य सुविधाएं जो मिलनी है वह भी समय पे मिल जाए, किसी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश न रही, अथॉरिटी सुनिश्चित कर दे। और आने वाले समय में भी जो मैंने कहा है कि वहां के युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें वहां आ जाए, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, प्रशिक्षण के केंद्र, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। अथॉरिटी कुछ पैसा लगाए, कुछ हम लोग सरकार से भी दे देंगे, कुछ वहां पर सीएसआर से भी आप पैसा लगवाने की तैयारी करवाइए, क्योंकि हमारी कोई भी पॉलिसी बने, याद रखना वह पॉलिसी तब तक अधूरी है जब तक वह एम्प्लॉयमेंट न दे, रोजगार, नौकरी और रोजगार जरूर दे, और लोकल स्तर पर उसको मिलना ही चाहिए, अन्यथा लोग जाएंगे कहां। डेयरी से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए ट्रैक्टर फैक्ट्रीज में हो सकता है, ट्राई सिटी आप बना रहे हैं, ट्राई पार्क बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण दीजिए। ये लोग भी अपनी एक फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए लोगों को भी थोड़ा उपलब्ध हो कुछ व्यवस्था। मेडिकल डिवाइस पार्क है, वहां पे जितने भी इक्विपमेंट बनेंगे मेडिकल से जुड़े हुए, वे सब वहां बने तो वहां पर इन लोगों को नौकरी भी, और ये लोग कुछ लोग वहां पे अपना उद्यम भी लगा सकें, ऐसी सुविधा वहां देने की और उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बैंकों से आसानी से जोड़ने की व्यवस्था, ये सब भी उसको करेंगे। तो ये विधायक जी के नेतृत्व में आप सब इस कार्य को करिए। कोई भी बात होगी तो मैं एक बार फिर से वहां आपके पास आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और कोई इश्यू वहां नहीं रहेगा। एक ये मामला है। दूसरा है कि अप्रैल में प्रधानमंत्री जी के हाथों हम लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करवाएंगे, बड़ा कार्यक्रम होगा। देखिए, आप लोग देश को एक ऐसी चीज दे रहे हैं, यही परिवर्तन होता है। पिछली सरकारों ने अंधकार दिया था, अपराध हो रहा था। जो जुलाई 17 में घटना घटित हुई थी, जब मैंने वहां की जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि हर साल ऐसी घटनाएं घटित होती। भाई बेटी कोई भी रही हो, बहू कोई भी रही हो, तो इस समाज की ना, समाज तो उसका होना ही चाहिए। और उस समय फिर हमें अपराधियों। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।